Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So today we will discuss about the saline and sodic soil and their management, and of course the laterite soils and their management also. Okay, so firstly we will see what is saline soil. Okay, so saline and sodic soils occur mainly in arid and semi-arid regions of the country where the annual temperature are high and rate of evaporation generally exceeds rainfall. Okay, so evaporation rate and rain high temperature is direct proportional to each other. मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन रेट भी बढ़ते जाएगा. राइट, सो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, किसी भी सॉल्ट का एक्यूमुलेशन होगा, एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे. राइट, एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, अपर क्रस्ट बनेगा और जो सॉइल है, सॉइल इज टू बिकम अ सॉल्टी सॉइल. राइट, so saline, this situation leads to accumulation of salts in surface layer of the soil. Saline soils contains excessively soluble salts and the dominant soil type are chlorides and sulfates of sodium, magnesium and calcium. That means the sodium chlorides and sodium sulfates, the magnesium chloride and magnesium sulfates, and the calcium sulfates and calcium chlorides also. Okay, so this kind of elements are accumulate each other and leach out in the surface soil, and soil has to become a saline and sodic soil. Okay, so total salt concentration as expressed by the soil EC, which is electrical conductivity. Okay, so electrical conductivity is generally more than 4 ds per meter. Okay, so always remember that unit. Okay, सो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम सॉइल का कंसंट्रेशन निकालते हैं, है ना, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोड और कैथोड के थ्रू हम देखते हैं कि कितने प्लस मार्किंग है. अगर एसिडिक सॉइल है तो हम देखते हैं कितनी नेगेटिव मार्किंग है उसकी, और अगर सेलाइन सॉइल है तो हम देखते हैं कितनी क्षारीयता उसकी है. राइट, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, जिसका मोर देन कितना होता है, 4 ds per meter. Okay, so always remember. Then these soils are associated with waterlogging, saline groundwater and aridity. ठीक है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन जब होती है, ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन जब हो जाती है, वहाँ पे ये जो सॉइल है वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के सॉइल में जो सॉल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं. ठीक है, अब उस कंडीशन से जब वाटर ड्रेन आउट करते हैं, या तो वो हम मैनुअली करें, आर्टिफिशियली करें, या इवेपोरेशन रेट से जब वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, तो वहाँ पे जो सॉइल्स बच जाते हैं, सॉइल क्रस्ट जो हो जाते हैं, वो दैट सॉइल इज टू बिकम अ सलाइन सॉइल. ओके, and more than 9.5 pH, that is called the sodic and saline soil also. Okay, so always remember that particular thing. Okay, so let us move. Okay, then second is the sodic soil. So sodic soil generally contains salts of carbonates and bicarbonates of sodium. ओके, सो मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉइल कंटेन जो हमको मिलता है अगर हम निकालें परसेंटेज वाइज, तो दैट इज कॉल्ड द सोडिक सॉइल. ओके, और एंड सेलाइन सॉइल में क्या होता है, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हमें मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सलाइन सॉइल. ओके, सो देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग. देन sodium, where the soil electrical conductivity will be less than 4 ds per meter. In saline soil more than 4 ds per meter, but in sodic soil less than 4 ds per meter. That is the unit for electrical conductivity. ओके, सो ये आप कंपैरिजन करके याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो सलाइन सॉइल होती है उसमें मोर देन 4 ds पर मीटर होती है, और जो अल्कलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल होती है उसमें लेस देन होती है. एंड द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज मोर देन 15%. ठीक है, मतलब जो एक्सचेंज होता है सोडियम परसेंटेज का वो लेस देन क्या, सॉरी, मोर देन क्या होता है, 15% होता है. देन these soils can be observed with stagnation of muddy water after rain for many days, and they are very hard when dry and very soft when wet. Okay, that means
जब वाटर लॉगिंग, जब लगातार कंटिन्यूसली जब रेनफॉल होता है किसी एरिया पे या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, ठीक है, तो उस कंडीशन पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, जल भराव, वाटर स्टेग्नेशन मतलब जल भराव जब वहाँ पे हो जाता है तो मडी सॉइल्स बन जाती है, मतलब एक दलदली कीचड़ वाले सॉइल्स बन जाते हैं। और जब वो कीचड़ वाली सॉइल हम देखेंगे कि जब ड्राई हो जाती है तो इट हैज़ टू बिकम अ वेरी हार्ड कॉम्पैक्ट सॉइल, है ना। और जब वो वेट रहती तो बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो वो उस तरीके की जो सॉइल है वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स जो हैं सोडियम के, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड दैट सॉइल हैज़ टू बिकम a sodic soil also. Okay, then the sodic soil contain insoluble calcium carbonate at high pH level which is more than 9.5. ओके, मतलब इस सोडिक सॉइल जो है वो जो बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिले हुए होते हैं सोडिक सॉइल में, जिसका पीएच जो होता है 9.5 से अधिक होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे और कंपैरिजन करके याद रखेंगे कि सलाइन सॉइल में क्या होता है एंड सोडिक सॉइल में क्या होता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एनीवेज, लेट अस मूव। द सेकेंड थिंग इज द क्रॉप कल्टिवेशन इन सलाइन सोडिक सॉइल इन अंडर ड्राई फार्मिंग कंडीशन। ओके, सो हमें सॉइल का स्टडी करना या रेनफेड एग्रीकल्चर का बेसिकली स्टडी करना क्या है, क्रॉप का प्रोडक्शन करना या क्रॉप का कल्टीवेशन करना, कि दैट पर्टिकुलर सॉइल में हम क्या कर सकते हैं, कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि किस क्रॉप का प्रोडक्शन हम किस तरीके के सॉइल में ले सकते हैं। सो आई ऑलवेज टेल यू दैट एग्जाम्पल्स आर वेरी मस्ट फॉर आवर एग्रीकल्चर ना। एग्जाम्पल्स बहुत मस्त है, थियोरेटिकल ठीक है, बट आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है या हमारा जो टारगेट है वो क्रॉप प्रोडक्शन से है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन से तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सॉइल में किस तरीके के हम क्रॉप्स लगा सकते हैं, right? So reclamation technologies for growing crops in salt affected soils. Okay, so the reclamation या amendment technologies for the salt affected soil is something like gypsum. हम gypsum अप्लाई कर सकते हैं salt affected soil में, soil की उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए या उसकी क्षारीयता को बैलेंस करने के लिए for the crop cultivation, for the crop production also. Okay, the soil depending upon the availability of the source of water, areas which depend on the depends only on rainfall as the source of moisture, cultivation of salt tolerant plant species and planting techniques are recommended. ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, सॉल्ट टॉलरेंट, अब ऐसी जगह पे अगर हमें क्रॉप का प्रोडक्शन लेना है या कल्टीवेशन करना है तो ऑब्वियस है कि हमें पहले तो मेंटेन करना होगा। मेंटेन कैसे करेंगे, हम रिक्लेमेशन टेक्निक्स अपनाएंगे, ठीक है। अगर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल है तो हम क्या करेंगे, जिप्सम अप्लाई करेंगे, अगर एसिड अफेक्टेड सॉइल है तो हम लाइम अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये अमेंडमेंट, सॉइल अमेंडमेंट रेडी रखेंगे हम अपने सॉइल के लिए। और सेकंड टेक्निक्स हम ये करेंगे कि जो सॉइल सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है वो हम चूज़ करेंगे, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज द चॉइस ऑफ द क्रॉप स्पीसीज और क्रॉप वैरायटीज ऑल्सो। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द क्रॉप हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशंस एंड फ्यू सच क्रॉप्स which are sensitive and tolerant to soil salinity and sodicity under dry land condition, ठीक है। तो हमें क्रॉप का जो सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन से हैं, बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो बहुत सारे हम क्रॉप्स ऐसे भी हैं जो सॉल्ट के लिए टॉलरेंट है और कुछ जो है थोड़ा भी सॉल्ट अगर अवेलेबल है हमारे सॉइल में तो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। तो वो जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उनको सॉइल की हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्रॉप सॉइल के अगेंस्ट कैसा रिएक्ट करते हैं, राइट। तो दीज आर द क्रॉप कल्टीवेशन टेक्निक्स इन सोडिक एंड सलाइन सॉइल अंडर ड्राई फार्मिंग कंडीशंस। ड्राई फार्मिंग कंडीशंस में हमें एक्स्ट्रा क्या करना था, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक्यूमुलेशन रेट बहुत हाई रहता है। लीचिंग रेट किसी भी एलिमेंट्स का, चाहे वो एसिडिक का हो या सॉल्टी सॉइल हो, बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है। तो आप देखेंगे जब सॉल्टी सॉइल होता है तो वाइट क्रस्ट आपको दिखने लग जाते हैं, नमक जैसी परतें आपको सॉइल में दिखने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड दी सलाइन एंड सोडिक सॉइल ऑल्सो। ओके, सो लेट अस मूव। Yes, this is very important. Okay, we have 3 columns for that particular soil, which is saline and alkaline soil. Okay, you draw that kind of column and row for the particular examples, so you have get the very good marks in your exams.
ओके, सो आपको ये ड्रॉ कर रहे हैं अपने एग्जाम्स में, अगर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स आर देयर फॉर द पर्टिकुलर सॉइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। तो ये आपको याद करना है, दैट इज अ टॉलरेंट एंड द सेंसिटिव वेराइटी ऑफ दैट सम सेंसिटिव क्रॉप्स which are affected through the saline and alkaline soil also. Okay, so that column is sensitive and tolerant to soil salinity and sodicity under trial and conditions. So we have two columns like saline soils and alkaline soil, which is sodic soil also. Okay, so we have further, the saline soil is further divided like high sensitive and the high tolerant, है ना, more, and then the moderate sensitive and the medium tolerant varieties. And in alkaline soil we have the tolerant crops. Okay, so there are some examples for highly sensitive सलाइन सॉइल. ओके, सलाइन सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो लेग्यूम्स क्रॉप होते हैं लाइक ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड लेंटिल एंड ऑल पल्सेस क्रॉप वी कैन से दैट्स. ओके, एंड देन हाई अगर हम टॉलरेंट की बात करें तो डायरेक्ट सोन राइस जो है वो अपने आप को सलाइन सॉइल के अगेंस्ट टॉलरेट कर सकता है. देन द वीट, पर्ल मिलेट, बार्ले, ओट एंड मस्टर्ड्स आर द tolerant crops against the saline soil. Okay, and the second is the beans, rice, grasses like Rhodes grass, and the barley, wheat, cotton, trees like aula, bear, eucalyptus. These are the highly sensitive for against the saline soil. And some beans, rice, and some barley, cotton, wheats, these are the टॉलरेंट अगेंस्ट द सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल. मतलब वो अपने आप को बनाए रख सकते हैं, स्टैंड रख सकते हैं सॉइल, सलाइन सॉइल की कंडीशन में भी. बट जो हमारे पल्सेस हैं, बीन्स हैं और कुछ कॉटन्स की वैरायटीज़ हैं, कुछ वीट्स भी ऐसी हैं जो अपने आप को क्या कर सकते हैं, स्टैंड नहीं रख सकते, सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव है. ओके, देन सम मॉडरेट सेंसिटिव्स आर देयर. सो मेजर एंड माइनर मिलेट्स आर द मॉडरेट सेंसिटिव. मतलब कई बार बहुत सी वैरायटीज़ ऐसी है जो अपने आप को स्टैंड कर सकती है और बहुत सी वैरायटी ऐसी है जिनको हाईली सेंसिटिव है जो अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकती. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज मस्ट, ऑलवेज रिमेंबर. आपको हर एग्जाम्पल याद रखना है किस सॉइल में किस तरीके के क्रॉप्स हम ले सकते हैं. ठीक है, तो ये इफेक्टिव होते हैं हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए. देन द मीडियम टॉलरेंट अगर हम देखें तो सनफ्लावर, कॉटन एंड देन सम अकेशियन, टैमरिंड्स आर medium tolerant against the saline soil. Okay, when we talk about the alkaline and sodic soil, that some tolerant crops are there. Okay, so some beans and rices are, and then grasses, and then wheat, cotton, trees like aula, which is gooseberry, bear, Jejipus zeruba, eucalyptus, Dalgebria, Sisso, Tamelia arjuna. These are the spices crop as well. Okay, so this is very important for that examples for saline and sodic soils. So always remember, and you can draw in your exam this type of column. So I'm sure बहुत ही अच्छे आपको marks मिलेंगे. Okay, so let us move in next slides, which is the laterite soil, which is very important. The process of laterization, we all know about that. Okay, so let us see what is laterite soil. Yes, so laterite soils are well-drained soil with good hydraulic conductivity. They are formed by soil forming process called laterization. Okay, so this laterite soils is developed from the laterization process. Okay, so please highlight that particular term, which is laterization. So under high rainfall condition, silica is released and leach downwards, and upper horizon of soils become rich in oxides of iron and aluminium. This process is called the laterization. मतलब लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका जो है, सिलिका एलिमेंट जो है वो क्या करती है, लीच आउट करती है. और लीच आउट क्या करती है, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉइल वी कैन से. ठीक है, मतलब डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, टुवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस वी कैन से. ठीक है, उस तरफ क्या करती है, वो डेवलप होती है या लीच करती है. तो क्या होता है, जो सॉइल है वो ऑक्साइड्स और आयरन रिच हो जाता है. मतलब बहुत सारे ऑक्साइड्स और आयरन रिच जो एलिमेंट्स हैं वहाँ डेवलप हो जाते हैं. और जब इस तरीके का डेवलपमेंट सॉइल पे हमें दिखाई पड़ता है तो दैट इज़ कॉल्ड द लेटराइजेशन प्रोसेस, एंड द सॉइल हैज़ टू बिकम अ लेटेराइट सॉइल. ठीक है, सॉइल क्या हो जाती है, लेटेराइट सॉइल में
चेंज हो जाती है, ठीक है। उस तरीके की सॉइल को हम क्या कहते हैं, लेटेराइट सॉइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वी मस्ट नो दैट। So these soils are not useful for agriculture as they are thin and gravelly। मतलब ये सॉइल हम एग्रीकल्चर में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये कंकड़ पथरीले टाइप के हैं। ऑक्साइड्स और आयरन से आप क्या समझते हैं, एल्यूमिनियम से क्या समझते हैं, हार्ड पैन और कंकड़ जैसे सॉइल्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, राइट। सो लो लेटेराइट लेवल comprising of clay and loam occurs in coastal regions on both sides of peninsular regions and are कंसिडरेबल एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंस। मतलब ये तटीय क्षेत्रों में या कोस्टल एरिया में इस तरीके के सॉइल्स मिलते हैं। हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम अवेलेबल होते हैं उस तरीके के सॉइल में जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए सुटेबल नहीं होती, ठीक है। देन द टेक्सचर, अगर हम टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर जो होता है लेटेराइट सॉइल का जनरली लोम होता है। टॉप लेयर जो होता है लोम सॉइल होता है, ठीक है। अगर हम धीरे धीरे नीचे होते जाएं तो बहुत ही जैसे एरोटेड सॉइल होती है, जैसे एरोजन हो जाता है, मृदा अपरदन हो जाता है, वैसे लोमी लेयर होते हैं। बट अगर लोम सॉइल में एरोजन हो जाए तो जिस तरीके की सॉइल बनती है, ऑक्साइड्स और जितने भी फर्टाइल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, रन ऑफ हो जाते हैं और जो अनफर्टाइल सॉइल बच जाते हैं, उस तरीके का लैटेराइट सॉइल का टेक्सचर होता है, ओके। सो ऑल लैटेराइट सॉइल्स आर वेरी पुअर न्यूट्रिएंट मटेरियल, वेरी पुअर बेस मटेरियल्स इज ऑल्सो, ठीक है। एंड देन pH ऑफ लैटेराइट सॉइल इज लो एंड एसिडिक इन नेचर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर कि उनका pH जो है बहुत लो होता है और एसिडिक होता है। तो ये किसी का भी pH अगर लो है तो वो एसिडिक है, अगर सॉइल एसिडिक है तो उसका pH लो रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए बहुत ही पुअर है ये सॉइल की कंडीशंस, ठीक है। और जो लेटेराइट सॉइल है वो लेटेराइजेशन प्रोसेस से डेवलप होती है। जब सिलिका जो है डाउनवर्ड एक्यूमुलेट होता है या लीच होता है हम कह सकते हैं, तो आयरन और आयरन के ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। वो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो लेटेराइजेशन कहलाता है और जो सॉइल बन जाती है दैट इज़ कॉल्ड द लेटेराइजेशन और लेटेराइट सॉइल, ठीक है। तो ये हमारा था सॉइल का कंडीशंस रेनफेड एग्रीकल्चर में, और उस सॉइल के कंडीशन में हमें किस किस टाइप के क्रॉप्स लगाने होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है। देन क्रॉप कल्टीवेशन इन लेटेराइट सॉइल अंडर ड्राईलैंड कंडीशन, ठीक है। अब लेटेराइट सॉइल में हमें कैसे किस तरीके के क्रॉप, तो जनरली इसमें हम प्लांटेशन क्रॉप लेते हैं, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, बड़े बड़े झाड़ या पेड़ के जैसे होते हैं, ठीक है। मोस्ट टॉलरेट होते हैं, वो किसी भी एडवर्स कंडीशन के लिए टॉलरेबल उनके में कैपेसिटी बहुत होती है, ठीक है। तो जनरली हम प्लांटेशन क्रॉप टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यू नट, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स में बिकम नेसेसरी इन रीजन ऑफ लो टू मीडियम रेनफॉल, ठीक है। मतलब सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन इस सॉइल के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरली कहाँ, कोस्टल और पेनिसुलर रीजन में मिलते हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल जो है या तो लो होता है या तो मीडियम रेनफॉल जैसे कंडीशंस जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो सॉइल मॉइस्चर का कंजर्वेशन जो है, या हम कह सकते हैं कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली नहीं होता, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये जो रन ऑफ हो जाता है, फर्टाइल नहीं रह जाती सॉइल। तो इस तरीके की सॉइल जो है वो लेटेराइट सॉइल जो है वो कोस्टल रीजन या पेनिसुलर रीजन में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि लेटेराइट सॉइल में प्लांटेशन क्रॉप जो है वो हम लगा सकते हैं, जैसे कि जो टी है, कॉफ़ी है। अगर टी कॉफ़ी के साथ हम इंटरक्रॉपिंग करना चाहें तो सम राइस एंड माइनर मिलेट्स आर सुटेबल फॉर लेटेराइट सॉइल, ओके। तो ये था हमारा सॉइल के कंडीशंस हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में विद द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप कल्टिवेशंस, ओके। सो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस, एंड इन दिस नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेवलेंट in rain-fed areas also, okay. So thank you very much. Until then, be safe, take care. Thank you.